tendency, specifically in the after the menopause, they do develop, they have a tendency to develop atherosclerotic compartment in the vessels, specifically in the smaller vessels of the renal compartment. So that is why it is a bit lesser. So renal, there is a high renal flow, around 20 to 25% of the cardiac output, which is very important for having a high cardiac glomerular filtration rate. We talked about it. Okay, so if I convert this 125 ml per minute into liters a day, we know that it is 180 liters per day. So 3 ml of plasma volume gets filtered through the kidney 60 times per day. So this much is the rate of plasma getting filtered repeatedly within a day's time. But 99% of the glomerular filtrate, which is being filtered from the nephrons, it gets reabsorbed by the tubular system, making having the net urine outcome to be approximately 1.5 liters per day. So that is what we have read. Even we explained about what is the net filtration pressure, what are the components which what we say control the net filtration pressure, or what we say effective filtration pressure. They can be used synonymously. And then we also said that the glomerular filtration rate also depends upon the capillary filtration coefficient. Now, what is the capillary filtration coefficient? It was KF. You can represent it as KF or FC, that's up to you. Now, you remember it was dependent on many aspects. So before I go into the revision of capillary filtration pressure, let's talk about the effective filtration pressure or net filtration pressure. So what exactly it is? It is a sum of hydrostatic and colloidal osmotic forces that favor or oppose the filtration. Now, what are the forces which will favor the filtration? First, glomerular hydrostatic pressure. Second, Bowman capsular colloidal osmotic pressure. Normally it is 0 because we don't have any proteins in the filtrate. So it's almost 0. Now, what are the forces which are going opposite to that, the filtration, which prevent the filtration, or they cause the reabsorption at the capillary level? First, the Bowman capsular hydrostatic pressure, and second, the glomerular capsular colloidal osmotic pressure, which is mainly because of the plasma proteins, right? So these are the 4 pressures, 2 in favor, 2 in opposite direction. Fine. This you remember? I need not explain it again. So take a paper and pen. Take a paper and pen. आपने सुबह जो वैस्कुलर कंपोनेंट बनाया था उसमें आर्टेरियल और पेरिफेरल एंड बनाया था. आप ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनाइए. उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 45 मिलीमीटर का वैल्यू डाल दीजिए, 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी. बोमन कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 10 mmHg है. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी रखिए. और बोमन कैप्सूल में जो कंपोनेंट है उसको बोमन कैप्सूल में जो इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको 0 रखिए. अब पहले तो फिल्ट्रेशन बताइए, नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा और अपोजिंग फिल्ट्रेशन कौन सा होगा, कितना वैल्यू है? राइट इट इन द चैट बॉक्स. फिल्ट्रेशन, द फैक्टर्स, टोटल प्रेशर विच फेवर्स फिल्ट्रेशन एंड टोटल प्रेशर विच अपोजेस फिल्ट्रेशन, कितना है? फेवर कितना कर रहा है और अपोज कितना कर रहा है? राइट इट इन द चैट बॉक्स. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10, वो तो ठीक है. Let us go step by step. 45 and 35. 45 favors and 35 is in the opposite. Great, great. Very nice, very nice. तो यहां तक तो समझ आया कि 45 mmHg जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वहां से फ्लूइड जाता है टुवर्ड्स द बोमन कैप्सूल, और जो बोमन कैप्सूल में कैपिलरी प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसकी वजह से फ्लूइड जाता है रिवर्स में. ऑन्कोटिक प्रेशर इन द कैपिलरी 25 mmHg है, उससे भी आउटवर्ड प्रेशर जाता है. सो 45 -25 -10 और
कैपिलरी का जो बोवेंस कैप्सूल में चूंकि फिल्ट्रेट में कोई प्लाज्मा नहीं होता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर 0 है. So net filtration pressure will come out to be 10 mm Hg plus. Do write it plus या minus because that really makes a great difference. So the net filtration pressure or effective filtration pressure in this condition is plus 10 mm Hg. Now दूसरा aspect glomerular filtration rate का क्या है? Filtration coefficient जिसको हम capillary filtration coefficient भी बोलते हैं. ये कितना वैल्यू है? द वैल्यू इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इज 12.5 स्क्वायर मीटर पर मिनट पर एमएम एचजी. तो किस पर डिपेंड करता है? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हमने पहले भी बात की है, एक तो परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी और दूसरा सरफेस एरिया. एंड दैट परमेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द पोर्स थ्रू ऑफ द कैपिलरीज एंड चार्ज ओवर द कैपिलरीज. चार्ज ओवर द कैपिलरीज एंड चार्ज ओवर द molecule which has to pass. तो ये चीजों पर ये डिपेंड करता है. So the once we calculate all those things for the glomerular capillary, it is around 12.5 square meter per minute per mm Hg. तो total glomerular filtration rate कितना होगा? 12.5 multiplied by 10. So now you understood how the value came out to be 125 ml per minute. क्या हमने अपने मन से नहीं किया है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कि glomerular filtration rate per minute is around 125 ml by this particular calculation. Fine. So you know now how to derive the glomerular filtration rate if those values are given to you. ठीक है. अब कौन कौन से फैक्टर्स फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करते हैं? सबसे पहली बात, चेंज इन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Now before I move ahead, is there any question till now? Is any question coming out to you people? We have calculated the glomerular filtration of glomerular filtration rate and which is coming out to be 125 ml per minute. Okay, quick question here. So what are the factors which regulate this filtration? Firstly, if there is a change in the hydrostatic pressure, मान लीजिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, मान लीजिए जो एफरेंट आर्टेरियोल है जिसमें से ब्लड आ रहा है और जो फिल्टर होने वाला है, अगर उसमें वेजोडाइलेटेशन होता है, मतलब उसका डायमीटर बढ़ जाता है, तो वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में बढ़ जाएगा. वो बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा. ठीक है. मानो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी, उस कारण से वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल हुआ. अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड. ठीक है. अब ये तो एफरेंट आर्टेरियोल जो एंट्री लेवल पर है. अब एग्जिट कहाँ होता है कैपिलरीज का? इफरेंट आर्टेरियोल में. अगर इफरेंट आर्टेरियोल में मॉडरेट वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ, मतलब माइल्ड, नॉट सीवियर, माइल्ड टू मॉडरेट हुआ, अगर हमने एग्जिट पे कंस्ट्रिक्शन कराया तो क्या होगा? ये जो ब्लड है ये धीरे धीरे बाहर जाएगा, तो ज्यादा ब्लड मिलेगा फिल्ट्रेशन के लिए, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो उधर कैपिलरीज में इंक्रीज होगा, जिस कारण से देयर विल बी स्लाइट इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. फाइन. अब मानो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है. नॉर्मली अब अगर हम मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो on an average the mean arterial blood pressure of an individual, normal healthy individual, it should be around 100 millimeter of mercury. मगर वो फ्लक्चुएट होता रहता है. It fluctuates between 80 to 180 mm Hg, and that makes it, that actually helps in regulating the, ये जो renal blood flow जो pass कर रहा है because of difference in the arterial blood pressure, that in turn helps in modifying the glomerular filtration rate. क्योंकि फिल्टर किससे हो रहा है? रीनल ब्लड फ्लो से. अगर वही चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन रेट भी चेंज होता जाएगा. ठीक है. दिस इज बाय ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म. दिस ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमने पिछली क्लास में बोला था, वी टॉक्ड अबाउट दैट इज अ मैकेनिकल मैक्युलर डेंसर रिएक्शन एंड सेकंड ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर फीडबैक. तो ये दो कंपोनेंट ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. अभी देखिए
यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल का वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस डिक्रीज हो गया, तो ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का डिक्रीज हुआ, नेट फिल्ट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो जीएफआर डिक्रीज हुआ। अब वेजोडाइलेटेशन अगर होता है तो ज्यादा ब्लड जाएगा तो कैपिलरी में ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा नेट फिल्ट्रेशन होगा, तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ओके, ये तो हो गया जीएफआर बढ़ाने का। दूसरा कारण जीएफआर बढ़ाने का है अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है इफ्रंट आर्टेरियोल में, अगर यहाँ कंस्ट्रिक्शन होगा, नॉट सीवियर, माइल्ड टू मॉडरेट, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर डायलिटेशन हो जाएगा, अगर इफ्रंट आर्टेरियोल का मतलब एग्जिट वेसल का डायलिटेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ज्यादा पास ऑन करता जाएगा, फिल्टर कम होगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन द diameter of afferent and efferent arteriole will change the glomerular filtration rate. ठीक है, ये हमने बात की। डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कब होता है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल या डायलिटेशन ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल होता है। और इंक्रीज कब होता है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल होता है या डायलिटेशन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल होता है। इन दोनों का अपोजिट आप रख लीजिएगा। सेम थिंग इज हियर व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड। ठीक है, विल नॉट गो इनटू द डिटेल पार्ट। अब दूसरा, ये तो हमने पहले तो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बात की। अब हम चेंज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल कब बढ़ता है, अगर स्टोन है यूरेटर में, अगर स्टोन है यूरेटर में तो बैक प्रेशर आएगा, तो उस कारण से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल बढ़ जाएगा, जिस कारण से जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। या ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर चेंज होता है, मानो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरीज का बढ़ गया, अब वो कैसे बढ़ सकता है, जब डिहाइड्रेशन होता है तब बढ़ सकता है, जब वोमिटिंग होती है तब बढ़ सकता है, या प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है ड्यू टू द लिवर में कुछ ऐसा चेंज आ गया जिस कारण से प्रोटीन, हालांकि ऐसा होता नहीं है, डिक्रीज ज्यादा कॉमन फिनोमेना है। तो अगर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, जिस कारण से फ्लूइड जो है वो रीएब्सॉर्ब ज्यादा हो जाएगा, so it will oppose the filtration at the glomerular level, so it will decrease the glomerular filtration rate. ठीक है, मानो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ कैपिलरी का, लिवर डिरेंज्ड हुआ, लिवर से एल्बुमिन सिंथेसाइज होता है, ग्लोबुलिन सिंथेसाइज होते हैं, वो सिंथेसाइज होना बंद हो गए या कम हो गए, उस कारण से क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो इनवर्ड प्रेशर जो है कैपिलरीज का डिक्रीज हो जाएगा। So what is going to happen? It will increase the glomerular filtration rate, right? अब functioning mass kidney, मान लीजिए normally when the number of the functioning nephrons decrease, कोई renal disease हुई, renal failure हुआ या glomerulonephropathy हो गई जिस कारण से renal के कुछ हो गया, तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है या फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इवन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, क्योंकि सरफेस एरिया, जो फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, सो जीएफआर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। ठीक है, यहाँ तक सिंपल चल रहा है। यह हमने अभी बात की थी ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, अगर परमेबिलिटी या फिल्टरिंग सरफेस एरिया किसी भी कारण से अगर बढ़ जाता, मान लीजिए पहले अगर ग्लोमेरुलर ट्रैक्ट में 1000 कैपिलरीज थी, से फॉर एग्जांपल 1000 तो नहीं होती है, चलो हम 20 कैपिलरीज थी, 20 में से 10 ही फंक्शनिंग थे, बाकी 10 पेटेंट थे, वो रेस्टिंग पीरियड। तो मानो ये 20 के 20 एक्टिवेट हो जाए, तो 20 के 20 एक्टिवेट हो जाएगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा, जिस कारण से जीएफआर बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी डायबिटीज मेलाइटिस आपको सुबह सर ने पढ़ाया, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है,
जिस कारण से उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रोपैथी उसमें क्या होता है, नेफ्रोपैथी मतलब नेफ्रॉन्स में इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। वो क्या होता है, उधर जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसका थिकनेस बढ़ता है। अभी हमने सुबह फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा कि जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, उतना कम फिल्ट्रेशन हो जाएगा, राइट? So same thing is happening once the thickness of the glomerular membrane increases, the filtration coefficient or diffusion permeability of the capillary at the glomerular level decreases, thus it will decrease the glomerular filtration rate, right? अब एक्सचेंज, कैपिलरी एक्सचेंज एरिया या फिल्ट्रेशन कंपोनेंट, टोटल जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी एक्सचेंज एरिया अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1.5 मीटर स्क्वायर पर 100 ग्राम्स ऑफ द लीनियर टिश्यू होता है, ये ऑन एन एवरेज है। अगर हम सिस्टमिक कैपिलरीज को सारों को खोल दें at particular time, it's around the capillary exchange area is approximately 1000 meter square. मगर एक रेस्टिंग पीरियड में केवल 25 to 30% ऑफ कैपिलरीज ही ओपन होते हैं ड्यूरिंग द रेस्टिंग टाइम, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी जहां पर थोड़ा हायर परसेंटेज ओपन होता है इवन ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज। So the capillary filtration coefficient in the glomerulus is much greater than that of the muscular capillary, क्योंकि उनकी पेटेंसी ज्यादा होती है, they are more open even during the state of rest, is around 50 to 100 times greater than that of the muscle capillaries. मसल में जो कैपिलरीज होती है सारी ओपन नहीं होती, कुछ ही ओपन होती है ड्यूरिंग अ रेस्टिंग स्टेट। वो कब ओपन होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ओके, लेट्स, इज दिस मच क्लियर? इज दिस मच क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस, ओके ओके, गुड गुड। अब चलो हम कंपेयर करते हैं, हम सिस्टमिक फिल्ट्रेशन रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को आपस में कंपेयर करते हैं। पहले हम सिस्टमिक की बात करते हैं। लगभग 20 लीटर फ्लूइड फिल्टर होता है डेली सिस्टमिक कैपिलरीज में, जिसमें से 16 to 18 लीटर्स जो पर डे जो है वो रीएब्सॉर्ब होता है वेन्युलर एंड ऑफ द कैपिलरीज में। बचा कितना? 2 to 4 लीटर्स। ये जो 2 to 4 लीटर्स इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आता है पर डे, ये वहां नहीं रहता है, क्योंकि अगर ये वहां रहता तो एडिमा हो जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि वो फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक फ्लो के थ्रू, थोरैसिक डक्ट के थ्रू वो वापस से वीनस सिस्टम में चला जाता है। ठीक है, यहां तक सिस्टमिक वाला सही है। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लगभग 180 लीटर्स पर डे फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। 180 लीटर्स, सी हाउ मच इज द डिफरेंस? वो 20 है और ये 180 है, और इस 180 में से कितना रीअब्सॉर्ब होता है? अप्रोक्सीमेटली 178.5 के थ्रू। तो एक्सक्रीट कितना होता है? 1.5 लीटर पर डे। फाइन, so you can see that in systemic filtration the filtration capacity is only 20 liters per day, while in glomerular filtration it's around 180 liters per day. So they have to be active, they have to be healthy throughout, otherwise it is going to make a big difference. ठीक है, अब हम रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन की बात और करेंगे। हमने सुबह भी बात की थी कि shape, size and electric charge of the molecule which has to get filtered through the membrane उस पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है तो वो फिल्टर आउट फ्रीली हो सकता है। अगर वो उससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा साइज है उतना डिफिकल्टी रेट होता है उनके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। ये हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। दूसरी बात, शेप। नॉर्मली सिलेंडर शेप जो सप्ली टाइप स्लीक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पास होते हैं कंपेयर टू जो गोल स्फेरिकल होते हैं जो रिजिड। बिकॉज रिजिड वाला जो है उसको उस पोर में से निकलना थोड़ा भारी होता है कंपेयर टू वन विच स्लीक स्लेंडर शेप। सिमिलरली हमने, अगर आपको सुबह का क्लास याद हो, हमने डेक्स्ट्रिन का एग्जांपल लिया था, पॉलीकैटायनिक, पॉलीएनाइनिक और न्यूट्रल। तो उसमें हमने क्या देखा, जो पॉजिटिवली चार्ज डेक्स्ट्रिन है वो इजीली पास हो रहा है कंपेयर टू न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल से भी डिफिकल्ट कौन होता है? नेगेटिवली चार्ज डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल। सो
Negativity, the charge of the particle is also very important factor to regulate the glomerular filtration rate. सरफेस एरिया की हमने अभी बात की ही, आपको याद हो मैंने मेसेंजियल सेल्स आपको पढ़ाए थे जब हमने सेकंड क्लास में हमने मेसेंजियल सेल्स की बात की थी। मेसेंजियल सेल्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, अब वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? by vasopressin, that is ADH, adrenaline, angiotensin 2, prostaglandin F2 and sympathetic stimulus. ये कारण है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेंजियल सेल। जब मेसेंजियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन को भी डिक्रीज करेगा क्योंकि उसको स्क्वीज कर देगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिक्रीज होगा, अगर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा। अब रिलैक्सेशन में देखते हैं, रिलैक्सेशन कारण क्या क्या होते हैं मेसेंजियल सेल्स में? प्रोस्टाग्लैंडिन E2, डोपामिन, मैंने डोपामिन की बात भी की थी, इट इज अ पोटेंट वेसोडायलेटर in the renal system. Cyclic AMP, atrial natriuretic peptide, they are all vasodilators. तो क्या होगा? Vasodilatation, contraction के बदले रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा तो सरफेस एरिया जो फिल्ट्रेशन का है वो बढ़ जाएगा बिकॉज पोर साइज ओपन रहेंगे, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट बढ़ने से GFR बढ़ जाएगा। So this is one mechanism how GFR gets regulated. Permeability हमने ये अभी पढ़ा था कि the GFR is directly proportional to the permeability of the membrane. अगर हाइपोक्सिया है, किसी को फीवर है, किसी को रीनल डिजीज है तो क्या होगा? इसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, परमेबिलिटी, एंड इट विल इवन अलाउ द पैसेज ऑफ द प्रोटीन्स। फिर ओवरऑल भले डिक्रीज हो जाए बट इनिशियली इंक्रीज करेगा, राइट? बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेड टेम्परेचर जिसमें केमिकल molecule, so that will also regulate the GFR. Okay, now we know that there are two major Starling forces, and these Starling forces, whenever the capillary osmotic pressure it rises, or the glomerular capillary osmotic pressure rises, the glomerular capillaries, due to the filtration of the protein free fluid, so filtration will stop if the glomerular capillary osmotic pressure and the hydrostatic pressure in the Bowman's capsule, it increases to the extent that it is at par with that of the pulmonary hydrostatic pressure in the glomerular capillaries. मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पल्मोनरी कैपिलरीज में 45 होता है, अगर बाकी दो जो आउटवर्ड प्रेशर्स है अगर वो उनका वैल्यू 45 के करीब आ जाता है तो फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाता है, इट विल कम टू एन इक्विलिब्रियम लेवल. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द इमेज शोज. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल 10 के करीब है, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के कारण 25 के करीब वो होता, तो ये 35 के करीब. अगर कोई भी कंपोनेंट इन दोनों में से बढ़ जाता है और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज को रीच करता है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टॉप. ये एरिया है जहां फिल्ट्रेशन दिखा रहा है. कैन यू एक्सप्लेन कैपिलरी बेड पॉइंट अगेन? विच कैपिलरी बेड पॉइंट बेटा? Which point of capillary bed you want to ask? Mesangial wala? Happy? Roll number 42? No, then which? See, I talked of many capillary. The last factor. नाम बता दीजिए बेटा, last factor कौन सा? Can you name it? Because I talked about many things. कैपिलरी सरफेस एरिया. ओके, नॉर्मली अगर हम कैपिलरी सरफेस एरिया की बात करते हैं, ओके, लेट्स गो बैक टू द कैपिलरी सरफेस एरिया. नॉर्मली कैपिलरी सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरी सरफेस एरिया इज अ बिट, नॉर्मली सारी कैपिलरीज एट वन पर्टिकुलर टाइम इन अ रेस्टिंग स्टेट ओपन नहीं रहती है. उनमें कुछ ओपन होती है, कुछ क्लोज रहती है, ठीक है. एंड दैट बेसिकली हेल्प्स, जितनी ज्यादा वो ओपन रहती है उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन का चांस रहता है. एक पर्टिकुलर वो जो कैपिलरी एक्सचेंज जो है
वो डिपेंड करता है मेसेंजियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पर। अगर तो मेसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीजन, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच आई जस्ट मेंशन, हार्मोनल फैक्टर्स है या लोकल हार्मोनल मैकेनिज्म की वजह से, किसी भी कारण से अगर मेसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस कारण से वो जो आसपास की जो मेसेंजियल सेल्स क्या है, जो सेल्स ग्लोमेरुलर टफ्ट के आसपास, जब वो सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो प्रेशर अप्लाई करेंगी किस पर, कैपिलरीज पर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। वंस द कैपिलरीज आर गेटिंग प्रेशराइज्ड तो उनकी पेटेंसी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे कि उनके थ्रू ब्लड पास करे, तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा फिल्ट्रेशन का, तो कोफिशिएंट जो है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट फॉर कैपिलरीज डिक्रीज हो जाएगा, तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर यही मेसेंजियल सेल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो जो कैपिलरीज थी वो थोड़ी डायलेट हो जाएंगी, डायलेट जरा सा एक्सपेंशन हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन जो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो इट विल इंक्रीज द कैपिलरी कोफिशिएंट, thus increase the GFR. Is that okay? Okay, good, good. Okay. Now these are the list of the hormones which will cause vasodilatation और vasoconstriction. हमने इसके बारे में पहले भी बात की, जैसे जो पोटेंट vasoconstrictor है वो angiotensin 2 है, endothelin है, norepinephrine है. While vasodilators there are many, dopamine is one of the important vasodilator. तो ये सारे जो है वो renal blood flow को affect करते हैं, which in turn will affect the GFR. Say for example किसी इंसान को renal disease है या उसको diabetes है या उसको hypertension या because of aging उसकी जो vascular component है उसमें what you say atherosclerotic plaque बन गया, तो उस कारण से क्या हो जाएगा, फ्लो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, उस कारण से कैपिलरी की पोटेंसिटी या कोफिशिएंट भी डिक्रीज हो जाएगा, विच विल इन टर्न डिक्रीज द जीएफआर। अब मानो किडनी स्टोन है, अब अगर किडनी स्टोन है तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोवेन्स कैप्सूल है वो बढ़ेगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोवेन्स कैप्सूल बढ़ेगा, वो क्या करता है, अपोज करता है ना फिल्ट्रेशन को, तो फिल्ट्रेशन को अपोज जो चीज करेगा उसका वैल्यू जब बढ़ेगा तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, रीनल ब्लड फ्लो किसी भी कारण से डिक्रीज हो गया, किसी भी कारण से, ओके, वी आर नॉट गोइंग इनटू द रीजन, what it will do, it will increase the plasma osmotic protein, right? So that in turn will increase the colloidal osmotic pressure, thus it will decrease the glomerular filtration rate. चलो एंजियोटेंसिन 2 की बात करते हैं। अगर हम एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज करते हैं बाय गिविंग एन एस इनहिबिटर ड्रग, हमने एक एस इनहिबिटर ड्रग दिया जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 से को कन्वर्ट करता है, अब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एंजियोटेंसिन का लेवल कम होगा। अब एंजियोटेंसिन क्या करता था, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता था, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू, it will cause normal patency of the afferent arteriole, so the blood flow is going to be more, so GFR is going to get more and more. So it depends किसमें क्या क्या aspect आता है। ये हमने hormones अभी बात की थी, these are the different hormones which will cause increase or decrease depending whether they are vasodilatory or they are vasoconstrictor in nature. So this was all as far as